Good morning, everyone. Okay, so in last lecture we have some basics regarding Excel, and today also we will explore more things regarding Excel basics, and we will do some of the calculations using that formula bar. If you remember, in last lecture we have done that particular thing. Okay, so whatever we have done in last lecture, that is what is given in this chapter. So we will start with this chapter, that is 7th chapter, Excel basics, calculations and functions. So now you can see here in this particular thing, what we need to understand, how to create a new workbook. So just what you need to do, you need to go to the file tab, you need to click on the new and create the new workbook. So this is how you can create the workbook. Then how to enter the data in the worksheet, so that is also we have seen. So if you remember, just you can see here what they have given. Yes, so this is what we have also done in last lecture. If you remember, that is we have created one workbook, and उसमें एक worksheet पे we have just randomly taken some of the values for the students, that is marks, a student name, marks for 4 subject, I guess. So we have entered, and then we have find out that how to find out the total and the percentage. So I hope यहाँ तक आपको सबको याद रहेगा. Yes, am I right? बोलो जल्दी. Yes, please give me the confirmation quickly. If you remember, in last lecture we have done same thing. That is, we have created one table in worksheet. इसमें हमने कुछ students के नाम डाले थे, that is ABC and so on. And then we have entered some of the subjects marks, and then we had find out how to calculate the total with the help of formula bar or auto sum. That particular tab is there on the worksheet. Then we have seen how to calculate the that is percentage also. So you can see here in this particular chapter the same thing they have given, that is how to create a new workbook, then how to enter the data in the worksheet, how to save the file in the workbook. Okay, even if you want to change the name of the workbook or worksheet, so that also you can do. So this is how you can delete or insert or rename a particular worksheet. So just I will show you those particular calculation. Now as you can see, by default name of this particular workbook is book 1. यह ऊपर आपको टाइटल में दिखाई देगा. So as soon as you click on the create new, अगर आप new पे click करोगे, so you will be getting next one, that is about workbook book number 2. So this is how you can get this particular name. एंड देन ये बाय डिफ़ॉल्ट नाम आता है बुक 1, बुक 2, बुक 3, ऐसे जब आपको सेव करना है कोई भी वर्क अगर आप करोगे, सो दैट पर्टिकुलर वर्क विल बी सेव, एंड फिर उसको जो भी नाम देना है वो आप नाम दे सकते हो. सो वी विल बी वर्किंग ऑन बुक 1. नाउ हियर व्हाट वी नीड टू डू, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था. सो जस्ट आई विल शो यू. I will create one short table, a small table. I will create roll number. So whatever heading you want to give, so just you need to give that heading directly. Roll number, say student name, then marks 1, then marks 2, then marks 3. तो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हम लोग ले रहे हैं. उसके बाद वी विल चेक टोटल, एंड फाइनली वी विल फाइंड आउट परसेंटेज. ओके, नाउ एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे कुछ डेटा हमको इंसर्ट करना है. तो से रोल नंबर में डाल देता हूँ 1, 2, 3, 4 एंड 5. 5 स्टूडेंट्स का मैं डेटा ले रहा हूँ. सो नेम, यहाँ पे जो भी आपको नाम डालना है, मैं रैंडमली कुछ नाम डाल रहा हूँ. आशीष से आकाश. ओके, देन से ABC, देन XYZ. ऐसे ही रैंडमली मैं कुछ डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ. ठीक है. नाउ मार्क्स, तो मार्क्स अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे आउट ऑफ से 100 आउट ऑफ मार्क्स डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे. सो सपोज 40 है, देन है 50, देन 60,
3 सब्जेक्ट्स का मार्क, अभी रैंडमली आप जो भी आपको डालना है डाल दो मार्क्स. सो दिस इज़ हाउ यू कैन जस्ट क्रिएट अ वर्कशीट, a table inside your worksheet. Okay, 45 say 65 then 75, अब यहाँ पे 90 से 80 then 70 एंड लास्ट में यहाँ पे 50 देन 67, कुछ भी रैंडमली मार्क्स डाल देता हूँ मैं. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन एंटर द डेटा इन योर वर्कशीट. सो ये सबको अभी मालूम रहेगा. अब इसको अगर आपको टैबुलर फॉर्मेट में प्रॉपरली करना है तो गो टू दिस फॉन्ट टैब. यहाँ पे जाके आप बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हो. जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन दिस. यहाँ पे जाओ, क्लिक करो. क्लिक करने के बाद ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करना है तो आपको ये ऐसे दिखाई देगा. अगर आपको और भी अच्छे से प्रॉपरली करना है तो यही देखो, ये जो सेल्स है, कॉलम्स जो है वो आप कम ज़्यादा उसका विड्थ कर सकते हो. ठीक है. इवन अगर ये हेडिंग अगर आपको बोल्ड में चाहिए, सिलेक्ट करो इनको. यहाँ पे जाओ, बोल्ड पे क्लिक करो एंड नाउ यू कैन सी. अब थोड़ा सा आपको प्रॉपरली दिखाई देगा ये. ठीक है. So this is how you can enter the data in your worksheet. Now as we all know that in Excel, whenever we create a workbook, in a single workbook, by default 3 sheets are there. Yes, sheet 1, sheet 2, sheet 3. सो इनको भी आप नाम दे सकते हो, ये भी हमने देखा है. सपोज़ ये है मेरा FY बैफ के स्टूडेंट्स का डेटा. अब दूसरा शीट यहाँ पे मैंने कुछ बनाया नहीं, बट इफ़ आई वांट टू गिव द नेम, सो SY बैफ यहाँ पे दिया. देन शीट 3 जो है यहाँ पे मुझे नाम देना है तो TY बैफ मैंने दिया. इफ़ यू वांट टू ऐड मोर वर्कशीट तो यहाँ पे क्लिक करो और एक वर्कशीट ऐड हो जाएगा. येस, यू कैन सी हियर, यहाँ पे देख सकते हो आप. बट इफ़ यू डू नॉट वांट टू यूज़ दिस पर्टिकुलर वर्कशीट, ज़्यादा वर्कशीट लेके भी कुछ मतलब नहीं है. जितना वर्कशीट पे आपको काम करना है उतने ही वर्कशीट इफ़ यू वांट टू कीप, देन इनको सिंपली आप डिलीट भी कर सकते हो. सो राइट क्लिक कर दो एंड डिलीट कर दो. ओके. सो दिस इज़ हाउ यू कैन डिलीट अ वर्कशीट ऑल्सो. सो जस्ट मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया. नाउ 3 वर्कशीट्स है यहाँ पे, तो फर्स्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं. सो दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट अ न्यू वर्कबुक. वी कैन एंटर द डेटा इन वर्कशीट. Even if you want to save this particular file, तो just you need to go to file tab. यहाँ पे जाओ, सेव कर दो. सेव करने के वक्त वहाँ पे नाम पूछेगा, डेस्टिनेशन पूछेगा कि कहाँ पे आपको सेव करना है. सो जस्ट जो भी आपका लोकेशन रहेगा उस लोकेशन पे जाके आपको ये फ़ाइल क्या करना है, सेव करना है. सो जस्ट आई विल क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पे आपका SY बैफ का जो फाइल है वहाँ पे जाके मैं एक नाम दे देता हूँ, डेमो एक्सेल फाइल. ओके. सो जस्ट मैंने अभी सेव किया. तो नाउ यू कैन सी टाइटल बार पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे डेमो करके वहाँ पे आया रहेगा. सो ये जो फाइल एक्सटेंशन है, ये जो फाइल है, ये फाइल आपका जो लोकेशन आपने दिया रहेगा उस लोकेशन पे आया रहेगा. नाउ यू कैन सी, यस दिस वन, ये डेमो फाइल हमने क्रिएट किया. इसका एक्सटेंशन जो है वो एक्सटेंशन होता है .xlsx. तो इसको अगर आपको देखना है तो राइट क्लिक करो एंड इसके प्रॉपर्टीज़ में जाके आप देख सकते हो कि इसका लोकेशन क्या है. सो आई विल जस्ट गो टू द प्रॉपर्टीज़ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यस दिस वन. सो द टाइप ऑफ फाइल इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट एंड उसका एक्सटेंशन देखो क्या दिया है आगे, .xlsx. So this is how you can just create a file and you can see the how to save the file, what is the extension, how many number of worksheets you want to work on. So that particular thing you can do. Even if you want to delete, insert or rename a particular worksheet, दैट ऑल्सो यू कैन डू. तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है वो होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3 एंड सो ऑन. सो वॉट एवर नंबर ऑफ शीट्स यू वांट टू ऐड वो भी आप ऐड कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू डिलीट अ पर्टिकुलर वर्कशीट वो भी आप कर सकते हो. एंड इफ़ यू वांट टू रीनेम एनी वर्कशीट तो ये मैंने आपको करके दिखाया है. यहाँ पे देख सकते हो आप FY बैफ, SY बैफ एंड TY बैफ. ओके. इवन इफ़ आई वांट टू डिलीट दिस पर्टिकुलर पार्ट तो उसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ. So this is how we can work on this workbook. Okay. If I want to copy this worksheet to other worksheet, अभी ये मुझे पूरा का पूरा वर्कशीट जैसे है वैसे पूरा का पूरा कॉपी करना है, तो what I need to do, तो कॉपी करने के लिए पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे A एंड ये 1, ये लेफ्ट हैंड साइड में देखो A कॉलम एंड फर्स्ट रो, इसके बीच में देखो एक आपको ट्रायंगुलर वाला शेप दिख रहा है एंड वहाँ पे जाने के बाद प्लस वाला सिंबल आ रहा है.
यस, अभी देख सकते हो आप, आई होप सो। तो ये जो प्लस वाला सिंबल जैसे ही आता है ना, वहाँ पे क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा वर्कशीट है ना, वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं उसको टैप करूँगा तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट। अब पूरा का पूरा वर्कशीट सिलेक्ट हो चुका है। तो सिलेक्ट हुआ है तो वी नीड टू कॉपी। कॉपी करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल सी। ये आप सबको मालूम है ना। सो कंट्रोल सी कर दो, एंड देन जिस वर्कशीट में जाके उसको पेस्ट करना है वहाँ पे जाके कंट्रोल वी। ये देखो। सो दिस इज़ हाउ व्हाट आई हैव डन। एक वर्कशीट को दूसरे वर्कशीट में मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। ओके। सो आई होप यहाँ तक सबको समझा रहेगा। यस, बोलो जल्दी। Okay, now the next one is that is about the calculations in Excel. So we have seen some of the calculations in previous lecture also. तो just अभी हम लोग यहाँ पे calculations करेंगे। अब calculations करने के लिए पहला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे total। so जैसे मैंने बोला कि जहाँ पे आपको calculations करने हैं, जहाँ पे आपको वो जो भी फॉर्मूला वो अप्लाई करना है, वो सेल पहले आपको सिलेक्ट करना है। सो आई हैव सिलेक्टेड दिस सेल, क्योंकि मुझे इन तीनों मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 का टोटल मुझे यहाँ पे चाहिए। सो पहले क्या करो, पहले आप वो सेल को सिलेक्ट करो। सेल को सिलेक्ट करने के बाद आइदर इफ़ यू वांट टू टाइप योर फॉर्मूला ऑन योर ओन, तो जस्ट आप क्या करो, इक्वल टू मार्क्स से स्टार्ट करो अगर आपको करना है तो। अदरवाइज आपको बाय डिफ़ॉल्ट भी बहुत सारे फार्मूलाज मिलते हैं। नाउ फॉर टोटलिंग, वन फार्मूला इज देयर दैट इज अबाउट ऑटो सम। ये आप देख सकते हो। यस, सो जस्ट इसके ऊपर क्लिक भी करोगे ना तो वो अपने आप ऑटो सम ले लेगा। सो नाउ यू कैन सी ऑटो सम। जैसे मैंने क्लिक किया तो उसने क्या किया, अपने आप उसने कुछ कॉलम्स को सिलेक्ट किया है। अब ये जो कॉलम्स है, आपको जितने कॉलम्स का सम चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट उनका जो होता है वो एक्सेल शीट खुद सिलेक्ट कर लेता है। बट अगर कुछ मिसिंग रहेगा, कुछ कॉलम्स अगर आपको चाहिए और ऐड करने हैं, तो दोस्त पर्टिकुलर कॉलम्स या कम ज़्यादा करना है तो वो भी आप कर सकते हो। दिस इज़ हाउ। ये देखो एरो मार्क आता है तो उसको आगे पीछे आप कर सकते हो। जितने आपको कॉलम्स चाहिए उतने कॉलम्स आप ऐड कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू, यू कैन यूज़ दिस ऑटो सम फॉर डूइंग द टोटल। ओके। सो आई होप ये आपको समझा रहेगा। तो ये फार्मूला जो है ये आपका इम्प्लीमेंट हो चुका है। जस्ट आप एंटर पे क्लिक करो एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पे आपका फार्मूला आया है। सो जैसे ही उस सेल पे क्लिक करोगे ना तो फार्मूला बार में ऊपर चेक करो, वहाँ पे दिया है इक्वल टू सम। सम फंक्शन यूज़ किया है हमने। एंड आगे देखो H4:J4, मतलब H का फोर्थ रो, आई का फोर्थ रो, रेंज दिया है से एच से लेके जे तक। वहाँ पे जो भी नंबर्स रहेंगे उनको आप क्या करोगे, एडिशन करोगे। सो ये फॉर्मूला अब हमें सब रोज़ है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। सो व्हाट आई विल डू इज़, हर बार हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला इज़ देयर। तो यहाँ पे ये जो ड्रैग का मार्क आता है ना, ये प्लस, इसको वहाँ पे क्लिक करो एंड उसको नीचे लेके जाओ जहाँ तक आपको वो फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है। एंड नाउ यू कैन सी अपने आप यहाँ पे वो कैलकुलेशन होके आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू द टोटलिंग। इवन अगर परसेंटेज या एवरेज आपको फाइंड आउट करना है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस करने हैं। तो जस्ट इमेजिन कि ये जो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स है आउट ऑफ 100 हमने लिया है। सो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें फार्मूला लिखना है फॉर फाइंडिंग आउट द परसेंटेज। सो जस्ट इक्वल टू साइन करूँगा। अब इक्वल टू साइन के अंदर यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो अभी देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सेल यूज़ करना है। तो कौन सा सेल, तो दिस वन नहीं, टोटल का ही लेंगे हम। सो टोटल, तो उसके ऊपर क्लिक करो। ओके। इनटू, इनटू के लिए हम लोग एस्ट्रिक यूज़ करते हैं। इनटू कितना, दैट इज़ सॉरी इनटू नहीं, डिवाइडेड बाय 300 चाहिए तो कर सकते हो। तो इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया एंड इनटू, इनटू करके 100। सो दैट इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज। तो ये फार्मूला मैंने बना दिया, एंटर करो तो वहाँ पे देखो अभी आ गया 50% मिल गया है ना। फर्स्ट जो पर्सन है उसको 50%। अब ये सेम फार्मूला रेस्ट ऑफ द रोज के लिए मुझे इंप्लीमेंट करना है। तो अगेन आई विल गो देयर, ये जो आपको ड्रैग मार्क दिख रहा है वहाँ पे जाओ, प्लस सिंबल जैसे आएगा क्लिक करो एंड उसको ड्रैग करो नीचे तक, तो वहाँ पे परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा।
So this is how we can do the calculations in Excel. So I hope ये पार्ट जो है ये आपको समझा रहेगा, क्योंकि यही सब कुछ दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो, हाउ टू कॉपी अ वर्कशीट, कैलकुलेशंस इन एक्सेल, सेम चीज़ यहाँ पे दिखाया है। सो हाउ टू, दैट इज़ टोटल कैसे करना है, एवरेज कैसे फाइंड आउट करना है, सो दैट पर्टिकुलर पार्ट दे हैव गिवन। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अबाउट द सेल रेफरेंसिंग. Now cell referencing is all about how to that is, a cell address will be referred to when a formula is being constructed. So a formula is constructed definitely using cell reference. We have seen that particular part. Just I will show you कि ये देखो, जब भी आपको फार्मूला बनाना है, अब ये देखो, ये फार्मूला जब मैंने यूज़ किया परसेंटेज का, और एल्स यहाँ पे टोटल का भी फार्मूला, तो वहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टोटल किसका करना है आपको, तो वो अभी हमें मालूम है यहाँ पे ये 40, 50 एंड 60, इसको मुझे क्या करना है, ऐड करना है। बट 40 कहाँ पे है, तो 40, जैसे आप 40 पे क्लिक करोगे ना, यू विल नोटिस 40 कहाँ पे है, तो एच कॉलम के 4th रो में है। सो दिस इज व्हाट नोन एज अ सेल एड्रेस और रेफरेंस एड्रेस. Okay, so whenever you are going to create a formula, that formula is constructed using cell address only. So अगर मैं ये formula आपको दिखाऊंगा ना टोटल का, तो आप देख सकते हो वहाँ के अंदर, देखो आप वहाँ पे नंबर्स यूज़ नहीं किए, 40 प्लस 50 प्लस 60 यूज़ नहीं किया है, वहाँ पे क्या यूज़ किया है, इंस्टेड वी हैव यूज द सेल एड्रेस, बिकॉज a cell address has to be what we can say, the content or a value provided in that particular cell is being used for those calculation. now इसमें जब ये सेल रेफरेंसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे ना 3 टाइप के रेफरेंसेस होते हैं. एक होता है रिलेटिव रेफरेंस. सो वेन एवर अ पर्टिकुलर फार्मूला इज कॉपीड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्कशीट टू अदर, the relative reference of the cell will change and relative to where it has been copied. so maybe जहाँ पे आपको जो भी फार्मूला आपने यूज़ किया है, वो फार्मूला अगर मुझे वहाँ पे डायरेक्टली क्या करना है, कॉपी करना है, सो देर आई कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट. ओके, सो जस्ट व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट. यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ओके. सो देखो, अब आप देखोगे मैंने यहाँ पे किया था सब कैलकुलेशन टोटल एंड परसेंटेज का. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी होता है, ठीक है. मैं चाहिए तो आपको थोड़ा सा चेंजेस करके बता देता हूँ. अब देखो यहाँ पे ना हम लोग कुछ ये चेंज कर रहा हूँ मैं, से 55, देन आगे मैंने लिया 65 एंड यहाँ पे 77, एंड यहाँ पे भी मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, 77 से 87, 97, देन ओके यहाँ पे है से 46, देन 66, देन 86. मैंने अब यहाँ पे ना टेबल चेंज किया है. ओके, फर्स्ट इसमें, एंड आई विल गो बैक टू दिस वन जहाँ पे हमने टोटल एंड परसेंटेज कैलकुलेट किया है. नाउ अगेन देखो, यहाँ पे मैं टोटल का जो ये फील्ड है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ. ओके, सो यहाँ पे कॉपी क्या हो रहा है, 150 कॉपी नहीं हो रहा है, यहाँ पे कॉपी क्या हो रहा है, ये जो फॉर्मूला है ना वो कॉपी होगा. आई विल शो यू दैट पार्ट. सो यहाँ पे मैं एफ वाई बैफ के इसमें जाऊँगा, यहाँ पे टोटल के इसमें मैं वो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ. नाउ जस्ट चेक, मैंने कॉपी क्या किया था थोड़े टाइम पहले, 150 कॉपी किया था. सो नेकेड आई से आपको दिख रहा है कि मैंने कॉपी किया था 150, बट वो वैल्यू कॉपी नहीं हुआ है. वो क्या कॉपी हुआ है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो कॉपी हुआ है. एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ यू कैन सी वहाँ पे टोटल देखो क्या आ रहा है, 197. सो वॉट एवर इज देयर, उसी हिसाब से यहाँ पे टोटलिंग आएगा. इसको भी आप डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हो, ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो. एंड दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ दैट रिलेटिव रेफरेंस. तो मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया, इसको बोला जाता है रिलेटिव रेफरेंस. दूसरे सेल का फार्मूला होने दो या जो भी है, तो यहाँ पे रेफरेंस दे के हमने क्या किया, दैट पर्टिकुलर पार्ट आई हैव यूज. ओके, so this is how relative reference we use, and it is useful in case of say some of the variable values. now in relative reference ये डॉलर साइन एक होता है, वो यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, डॉलर साइन यूज़ करके एड्रेसेस देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती. डायरेक्टली आप जो भी आपका रेफरेंस है उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो.
Similarly, the next reference is known as absolute reference. Now, whenever a formula is copied from one part of the worksheet to other, the absolute address of the cell will not change. So जो एड्रेस है वो एड्रेस वैसे ही रहेगा सेल का. सो इट विल रिमेन एज इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेर एवर इट इज कॉपीड. आप जहाँ पे भी कॉपी करना है करो, लेकिन वो जो उसका सेल का एड्रेस है वो सेम ही रहेगा. ओके. नाउ द थिंग इज यहाँ पे वी यूज़ दैट डॉलर सिंबल यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली टू गिव दैट पर्टिकुलर व्हाट वी कैन कॉल इट एज एब्सोल्यूट रेफरेंस. ओके. एंड बिकॉज ऑफ दैट डॉलर सिंबल ओनली आपका जो भी सेल का रेफरेंस होता है वो चेंज नहीं होता. एंड वन मोर रेफरेंस इज देयर दैट इज नोन एज अ मिक्स रेफरेंस, जहाँ पे व्हेन आइदर ऑफ द रो रिमेन्स कांस्टेंट और द कॉलम चेंजेस, और कॉलम रिमेन्स कांस्टेंट और रो चेंजेस. सो इसीलिए उसको नाम दिया है मिक्स रेफरेंस. सो इन शॉर्ट, मिक्स रेफरेंस इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. तो ये जो दोनों मेथड है, रिलेटिव रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो मिक्स रेफरेंस में यूज़ किया जाता है. सो अभी आपको थियोरेटिकल पर्पज से जस्ट यू नीड टू कीप इन माइंड सेल रेफरेंस क्या होता है. तो सेल रेफरेंस इज ऑल अबाउट हाउ सेल एड्रेस विल बी रेफर्ड व्हेन फॉर्मूला इज यूज. एंड उसमें फिर तीन टाइप्स होते हैं, दैट इज रिलेटिव रेफरेंस, देन सेल एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स रेफरेंस. तो इसका जो नोट्स है ये आपको प्रिपेयर करना है. एज यू कैन सी दिस इज गिवन हियर, ये अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है. तो जस्ट यू कैन गो ऑन एंड लर्न दिस पर्टिकुलर पार्ट. ओके. इसको प्रिपेयर करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो सेल रेफरेंस, द टॉपिक नेम इज सेल रेफरेंस, एंड जिसके अंदर तीन टाइप के रेफरेंसेस है, एज यू कैन सी रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स रेफरेंस. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. ओके. नाउ यहाँ पे और एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, दैट इज़ जस्ट टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट. तो दैट पर्टिकुलर पार्ट इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट पार्ट एक्सेल शीट. तो आपको करना है, आप करो. मैंने आपको एक टेबल करके दिखाया है जहाँ पे वी हैव डन दैट टेबल एंड टोटल एंड परसेंटेज वाला पार्ट. सो दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो, अगर अलग अलग, जैसे मैंने आपको बोला कि if you work in banking sector, then multiple times you need to do this particular thing. आपको इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको जीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो फॉर दैट रीजन व्हाट यू नीड टू नो, आपको पहले उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. एंड देन एज पर दोज पर्टिकुलर फॉर्मूलाज एंड वट एवर डेटा यू आर गोइंग टू स्टोर इनसाइड अ सेल, तो जहाँ पे जो डेटा है उस हिसाब से आपको वो सेल्स यूज़ करके या रेफरेंस यूज़ करके आपको क्या बनाना है, उसका फॉर्मूला क्रिएट करना है. सो दिस इज़ हाउ वी कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर अप्रोच ऑफ यूजिंग एक्सेल शीट्स. सो आई होप ये जो एक्सेल का जो बेसिक कैलकुलेशंस जो कर सकते हैं हम लोग, वो आपको समझा रहेगा कि हाउ टू परफॉर्म दोज पर्टिकुलर कैलकुलेशंस. यस, ये अगर आपको समझा रहेगा तो डायरेक्टली नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अबाउट फंक्शंस इन एक्सेल. एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. कि जब एक्सेल में हम लोग फार्मूलाज यूज़ करते हैं तो बेसिकली वी कम अक्रॉस विथ मल्टीपल फंक्शंस. I will show you multiple standard functions are available. So if I click on formulas, so now you can see here multiple functions are there. ये देखो financial. So these are the functions which we use for financial calculation. Then next one is that is about logical. So logical functions देखो and, false, if, not, or. So these are logical functions. Then text function. So text में देखो character is there, dollar is there, then len is there. The len is that is to find out length. then lower, upper, ऐसे बहुत सारे आपको functions है. replace. तो ये सब टेक्स्ट के लिए, मतलब कुछ कैरेक्टर्स है तो उनके लिए आप ये फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस यूज़ कर सकते हो. डेट टाइम, सो डेट टाइम के लिए भी मल्टीपल फंक्शंस आर अवेलेबल. लुकअप के लिए सम फंक्शंस आर अवेलेबल. मैथ्स, अगर आपको मैथ्स के कैलकुलेशन करने, ट्रिग्नोमेट्री के कैलकुलेशंस करने, so those particular functions are also available. So directly what the meaning of this particular part is what, inside the formula you get a lot of predefined functions. तो just you need to know कि कौन से functions का क्या functionality है,
and then you can use those particular functions directly. Now just I will show you. अब अगर मुझे यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो जस्ट आई विल टाइप एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वैल्यू, ओके। एंड यहाँ पे मुझे ना एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना है, जस्ट वेट, ओके। नाउ यू कैन सी, अभी मुझे ना यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना है? तो सपोज मुझे ये मार्क्स 3 है ना उसका, तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इक्वल टू साइन करूँगा एंड देन आई विल गो टू द मैथ्स फंक्शन ABS, तो मैं ABS का फंक्शन डायरेक्टली यूज़ करूँगा। एंड यहाँ पे अभी देखो जैसे आप फंक्शंस यूज़ करते हो ना, तो वो फार्मूला अपने आप वो स्टैंडर्ड फार्मूला जो है वो फंक्शन का जो अपने आप ले लेता है। जस्ट वी नीड टू प्रोवाइड हियर कि किसका आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे नंबर आप क्या करोगे एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, वॉट एवर फंक्शंस और द थिंग व्हाट वी कैन से, आपका जो भी ये देना है, दैट इज़ जस्ट आई विल गिव हियर पर्टिकुलर नेम, नंबर दे देता हूँ, चलो से 12। सो 12 मैंने लिखा एंड ओके कर दिया, तो देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे एक पर्टिकुलर ये यूज़ करना है, किसी रेफरेंस का डालना है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मैंने रेफरेंस डाल दिया J4, दैट इज़ मार्क्स 3। तो J4 का यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगा, दैट इज़ 77। एंड नाउ यू कैन सी, इसको मैं ड्रैग करूँगा ना तो सबका एब्सोल्यूट वैल्यू मुझे मिलेगा। अब ये आप बोलोगे सर सेम ही दिख रहा है, तो येस एब्सोल्यूट वैल्यू सेम ही होता है। जस्ट द थिंग इज़ अभी यहाँ पे मैं नेगेशन मार्क्स कहाँ पे डाल देता हूँ ना, नेगेटिव, तो जस्ट यहाँ पे मुझे डालने दो, मैं नेगेटिव -86 कर देता हूँ। अब देखो एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 78 डाल दिया मैंने, ठीक है। एंड यहाँ पे एब्सोल्यूट यूज़ करूँगा, एब्सोल्यूट वैल्यू, यस ABS। एंड यहाँ पे ज़रूरत नहीं मुझे इसकी, ओके, आई नीड टू गिव सम नंबर, सो 23 डाल दिया मैंने, ओके डाल दो। एंड यहाँ पे नाउ व्हाट आई विल डू इज़, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, दैट इज़ दिस वन J11। नाउ यू कैन सी, ये देखो ये है मेरा एक्चुअल वैल्यू एंड ये है मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू। सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ मल्टीपल फंक्शंस, इवन मोर फंक्शंस आर आल्सो अवेलेबल, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस, एवरेज अगर आपको फाइंड आउट करना है तो दैट पर्टिकुलर पार्ट आल्सो वी कैन डू। अब देखो यहाँ पे ये मैंने निकाल दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे इंस्टेड मैं डाल देता हूँ एवरेज। अब एवरेज मुझे यूज़ करना है तो यहाँ पे जाके मैं स्टैटिस्टिकल में जाके ये एवरेज यूज़ कर सकता हूँ। एंड हियर आई नीड टू प्रोवाइड द व्हाट वी कैन से, दैट इज़ जो जो आपको कॉलम्स चाहिए वो कॉलम्स आप क्रिएट कर सकते हो। सो जस्ट द थिंग इज़ कौन सा कॉलम, दैट इज़ H4 से लेके, एक मिनट, H4 देन कोलन J4, तो यहाँ से लेके वहाँ तक मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली एवरेजेस फाइंड आउट कर रहा हूँ, ओके। तो जस्ट इसको ओके कर दूँगा, तो नाउ यू कैन सी एवरेज अपने आप कैलकुलेट हो चुका है। एवरेज फंक्शन देखो, आपको कैलकुलेशन करने की, फार्मूलाज याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल फंक्शंस आर अवेलेबल, उनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, okay। And for that reason now we need to learn the functions available in Excel. So the first functions they have given here, that is about the maths function. So maths function में multiple functions are there, some of the functions they have given, so just what you need to do guys here, आप ये जितने भी फंक्शंस अलग अलग दिए हैं उनको आप प्रिपेयर करना, उसका मीनिंग क्या है वो समझ के लेना, एंड फिर एक एग्जाम्पल याद रखना। सो एब्सोल्यूट पहला ABS फंक्शन। सो एब्सोल्यूट फंक्शन क्या है, टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ गिवन नंबर। नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स इफ अ नंबर इज नेगेटिव then it is multiplied by negative number, that -1, otherwise the number remains as it is.
मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू इज व्हाट वी कैन कॉल इट एज द बेसिक वैल्यू। तो अगर फाइव है तो उसका बेसिक वैल्यू फाइव ही है, -5 है तो उसका बेसिक वैल्यू भी क्या है, फाइव है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, फाइव ही होता है। जस्ट द थिंग इज हम साइंस चेंज करते हैं। सो एब्सोल्यूट वैल्यू का मीनिंग क्या है कि आपका नंबर अगर नेगेटिव भी रहेगा तो भी उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विथ -1 so that we get the positive values. That is how we use this ABS function. So some of the examples they have shown, just check. ABS 5, उसका आंसर 5 है। ABS 7.9 7 पॉइंट, तो वॉट एवर पॉजिटिव वैल्यूज पॉजिटिव दिखेंगे एंड नेगेटिव वैल्यूज भी पॉजिटिव ही दिखेंगे। सो नाउ यू कैन सी हियर ABS -5, तो देखो उसका आंसर है 5। So that is what the first function of maths is, ABS. Then next one is SQRT. नाम से ही पता चलेगा, SQRT that is square root. तो अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है पॉजिटिव नंबर का तो आप डायरेक्टली SQRT ये फंक्शन यूज कर सकते हो। तो नाउ यू कैन सी हियर स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज 4। देन स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो 20 इंटू 5 किया है दैट इज 100, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस SQRT फंक्शन। नेगेटिव नंबर यहाँ पे अलाउड नहीं होता, कीप इन माइंड। सो जब अगर आप नेगेटिव नंबर डालोगे लाइक दिस SQRT -16, then you will get the error. So just keep in mind this particular function is only used for positive numbers. Then next one is mod, MOD function. So ये जो function है ये हम लोग use करते हैं to find the remainder of the division. तो जब हम डिवीजन करते हैं ना तो डिवीजन करने के बाद जो रिमेनिंग आता है, रिमाइंडर आता है, बाकी जो रहता है ना, वो अगर आपको फाइंड आउट करना है डायरेक्टली तो यू कैन हैव दिस पर्टिकुलर फंक्शन। सो यू कैन सी हियर एग्जांपल दे हैव गिवन, फर्स्ट वन दैट इज मॉड 23,5। मतलब क्या है, 23 को 5 से डिवाइड करना। सो करो डिवाइड, 23 से 5 को डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो। सो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, ओके, एंड फिर कितना बाकी रहेगा, 3। सो उसका आंसर मॉड क्या करता है, मॉड आपको ये रिमाइंडर, ये जो बाकी है ना डिवीजन के बाद, वो आपको आउटपुट में देता है। सो यू कैन सी मॉड 23,5 कितना है, तो 3 बाकी आया। सिमिलरली मॉड 13,4 मतलब 4 से आपको डिवाइड करना है तो 4 3 ज़ा 12, तो कितना बाकी रहेगा, 1, एंड हेंस द आंसर इज 1। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज मॉड फंक्शन। आई होप ये 3 फंक्शन समझ रहे हैं आपको। यस बोलो जल्दी। यस ओके चलो। सो 3 फंक्शंस अपने हो चुके हैं। नेक्स्ट वी विल गो टू द INT function. Okay, now INT function is used to round off the given number to lower integer. तो यहाँ पे बेसिकली जो भी नंबर्स है ना वो डेसिमल फॉर्मेट में रहेंगे एंड उनको INT से हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको राउंड ऑफ कर सकते हैं। सो राउंड ऑफ मतलब एग्जैक्ट नंबर, डेसिमल पॉइंट से नंबर आप राउंड ऑफ करोगे, बट राउंड ऑफ कहाँ पे करना है, टू द लोअर इंटीजर। ओके, so now you can see here first example they have given ki INT that is 5.1. so 5.1, so we do not, if we do not want this decimal number, so what I can do, INT use कर सकता हूँ and 5.1, so इसका lowest integer कौन सा है, 5.1 का nearest integer कौन सा है, तो 5, so the answer will be 5. okay, because 5.1 is between 5 and 6, बट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, नियरेस्ट कौन सा है, तो 5, बिकॉज ऑफ दैट वी हैव यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। सिमिलरली फॉर 5.9, अब ये INT जो यूज होता है वो लोअर के लिए ही यूज होता है, नियरेस्ट के लिए नहीं, याद रखो लोअर इंटीजर है उनके लिए ही यूज होता है। एंड फॉर दैट रीजन यू कैन सी 5.9, तीसरा वाला ऑप्शन देखो 5.9। सो 5.9 इज बेसिकली बिटवीन 5 एंड 6, बट अगेन स्मॉलर कौन सा है, तो 5, एंड हेंस द आंसर विल बी 5। अब ये ऊपर जो दिया है दैट इज फॉर माइनस, नेगेटिव नंबर, सो -5.9, सो माइनस में उल्टा होता है, सो -5.9 के सबसे लोएस्ट कौन सा है, तो -6, सो दैट्स वाई द आंसर इज -6। सो जस्ट कीप इन माइंड यहाँ पे -5.9 ये किसके बीच में आता है, -5 एंड -6 के बीच में आता है,
बट -5 एंड -6 के बीच में लोएस्ट कौन सा है, तो -6 है, इसीलिए ये आंसर आपको आया है -6। सो कीप इन माइंड, क्योंकि एग्जाम में आपको ना ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट कि पर्टिकुलर फंक्शंस दे सकते हैं एंड उसका आउटपुट क्या है ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है। सो फॉर एग्जांपल ऐसे आएगा आपको इंट ब्रैकेट में -5.9, आउटपुट क्या है उसका, ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड उसका जो लॉजिक है वो लॉजिक आपको समझ के लेना है। ओके, सो ये हो गया इंट। उसके बाद है नेक्स्ट वन, दैट इज़ राउंड। नाउ राउंड एज अ नेम सजेस्ट, ये भी राउंड ऑफ करने के लिए ही यूज़ होता है। सो राउंड राउंड ये जो फंक्शन है इट विल राउंड्स द नंबर टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट्स। राउंडिंग ऑफ डिपेंड्स ऑन द सेकेंड वैल्यू, तो जो वैल्यू दिया है उसके ऊपर ये राउंड ऑफ जो प्रोसीजर है वो आप यूज़ करते हो। नाउ यू कैन सी हियर राउंड, एंड यहाँ पे देखो दो नंबर से, पहला किसको राउंड करना है, तो 25.5462 इसको आपको राउंड ऑफ करना है। एंड कितने डिजिट्स आपको चाहिए आगे डेसिमल में, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है 3 डिजिट्स तक ही चाहिए। तो यहाँ पे कितने हैं, 5462, तो 4 डिजिट्स है, तो उसमें से जो लास्ट वाला है ना उसको निकाल दो। सो दिस इज हाउ यू कैन डू। अब यहाँ पे निकाल दो मतलब डायरेक्टली निकालना नहीं है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे 2 है ना, तो ये कम है, तो दैट्स वाई ये 546 जो है वो वैसे के वैसे ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट वन देखो 25.5462, अब मुझे यहाँ पे 2 प्लेस तक ही रखना है, तो 2 प्लेस मतलब सो 54, बट थर्ड वाला कौन सा है, तो 6 है, तो 6 इज नियर टू नेक्स्ट वन ना, तो आधे से ज़्यादा ऊपर है, इसीलिए उसको राउंड ऑफ करते वक्त मुझे क्या करना है, ये 6 का 5 करना है। आई होप ये देखो आपने भी बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशंस किए हैं, आप सबको मालूम है, ये बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं। सो जब ऐसे डेसिमल पॉइंट्स आते हैं ना तब हम लोग क्या करते हैं, उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। सो देखो डॉट सॉरी 0.54 है ना, तो यहाँ पे ये 6 है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 का 5 कर रहे हैं। आई नो ये गाइज ये सब आपको मालूम है, बट स्टिल जिसको मालूम नहीं रहेगा तो इट इज़ माई ड्यूटी टू जस्ट एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, दैट्स द रीज़न आई एम टेलिंग यू। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर राउंड फंक्शन। अब ये आपको एक्सेल में जब आप यूज़ करोगे तो आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अपने आप ये सब कुछ एक्सेल ऑटोमेटिकली ये फंक्शंस को रन करके आपको आउटपुट दे देता है। ओके, द थिंग इज जब आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो यू शुड बी एबल टू गिव द आउटपुट और आंसर्स प्रॉपरली। सो दैट्स द रीज़न आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस पर्टिकुलर थिंग। सो ये 4 या 5 फंक्शंस अपने हो चुके हैं अब तक, दैट इज एब्सोल्यूट का एक हुआ, स्क्वायर रूट का हुआ, मॉड, देन INT एंड राउंड। ओके, नाउ द नेक्स्ट फंक्शन वी विल चेक, नेक्स्ट वन इज, एंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं, सो दैट जस्ट यू कैन चेक आउट, ये नोट्स में अपलोड कर दूंगा, सो दैट यू कैन हैव द लुक ऑन वेरियस एग्जाम्पल्स दे हैव गिवन, जस्ट उसमें से स्टडी कर लेना। ओके, नेक्स्ट वन राउंड डाउन। सो दिस पर्टिकुलर फंक्शन विल राउंड ऑफ अ नंबर डाउन टुवर्ड्स द ज़ीरो। सो नाम से ही है राउंड डाउन, मतलब ये थोड़ा नीचे ज़ीरो की तरफ ये करेगा, राउंड ऑफ करेगा। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे भी राउंडिंग ऑफ जो है इट डिपेंड्स ऑन द सेकेंड वैल्यू। सो यू कैन सी सेम थिंग इज देयर, राउंड डाउन। एग्जांपल देखो 25.5462 कॉमा 3, तो 3 तक आपको करना है तो 546। नेक्स्ट वन इज 25.5462 कॉमा 2, तो 2 तक करना है। नाउ राउंड डाउन है ये, एंड फॉर दैट रीज़न हम 0 की तरफ जाएंगे, हम ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि 6 का 10 हुआ तो वो 55 होता है। तो यहाँ पे दो इट इज़ 6 to 6 है यहाँ पे, लेकिन स्टिल हमको क्या करना है, 0 की तरफ जाना है, इसीलिए हम लोग और एक ऐड नहीं करेंगे, तो 50 वी विल कीप इट एज इट इज़, दैट इज़ 54। सो दैट इज़ अबाउट द राउंड डाउन। तो ये 0 की तरफ टेंड करता है, एंड उसी के उल्टा दैट इज़ राउंड अप। सो राउंड अप करना है, हम लोग बोलते हैं ना राउंड अप करना है, राउंड अप, तो राउंड अप मतलब हम एक ऊपर जाते हैं, दैट इज़ अवे फ्रॉम 0। सो दैट्स द रीज़न यू कैन सी हियर राउंड अप में यहाँ पे देखो 5462 3 तक आपको करना है, तो 6 को मैं राउंड ऑफ कर दूंगा, राउंड अप कर दूंगा, 6 का 7 किया, देन 4 का 5 किया, है ना, देन 5 का 6 किया। सो दिस इज हाउ आई कैन डू दिस राउंड अप।
सो जस्ट कीप इन माइंड, राउंड अप में जो लास्ट इंटीजर होता है या जो लास्ट डेसिमल नंबर होता है उसको उसमें आपको एक इंक्रीज करना है, एंड राउंड डाउन में डिक्रीज करने की ज़रूरत नहीं, जो है एज इट इज़ वैसे के वैसे रखो। सो आई होप आपको ये समझा रहेगा। इवन और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स दे हैव शोन। नाउ सी दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, दिस वन। सो नाउ यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो राउंड डाउन में दे हैव प्रोवाइडेड -1। -1 मतलब आपको डेसिमल के भी पीछे जाना है, सो द नियरेस्ट लोअर इज 10। सो दैट्स वाई वी नीड टू, ये 25 जो है उसको भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, दैट इज़ 20 में आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ज़ीरो, तो ज़ीरो 25 जैसे है वैसे एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ वी नीड टू लर्न दिस पर्टिकुलर थिंग्स, एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ एक्सेल में आप इन सब का यूज़ जैसे आपका रिक्वायरमेंट रहेगा उसी हिसाब से आप करोगे। अदरवाइज वी डोंट यूज़ दिस पर्टिकुलर फंक्शंस अ लॉट। लेकिन जब आपको आपके जो कैलकुलेशंस है, दैट इज़ बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस एंड ऑल जो रहेंगे उनके लिए इफ़ रिक्वायर्ड, देन यू नीड टू यूज़ दिस पर्टिकुलर फंक्शंस अ लॉट। ओके, आफ्टर दिस राउंड डाउन एंड राउंड अप, द नेक्स्ट one is floor. So it will help you to round a number down towards the zero and to the nearest multiple of second number. तो सेकेंड नंबर जो है उसके नियरेस्ट मल्टीपल्स में जो नंबर है वो यहाँ पे आपको आंसर में आता है। सो नाउ यू कैन सी हियर फ्लोअर 7.5, 2। तो पहले समझ लेना, फ्लोअर दैट इज इट टेंड्स टुवर्ड्स द ज़ीरो। ओके, तो ज़ीरो के नज़दीक जाना है आपको, आपको आगे नहीं जाना है, तो ज़ीरो के नज़दीक। नाउ 7.5 है एंड यहाँ पे सेकेंड नंबर दिया है दैट इज़ 2। सो 2 के मल्टीपल्स देखो क्या क्या है, 2, 4, 6, 8। नाउ दिस 7.5 लाइज बिटवीन 6 एंड 8। यस, बट हमें कहाँ पे जाना है, टुवर्ड्स ज़ीरो। तो टुवर्ड्स ज़ीरो कौन सा नियरेस्ट है, तो 6। दैट्स वाई द आंसर इज 6। सिमिलरली नेक्स्ट वन आप देख सकते हो, माइनस वाला दिया है उन्होंने, अगेन सेम थिंग इज देयर, इट लाइज बिटवीन -6 एंड -8, बट नियरेस्ट कौन सा है, तो नियरेस्ट इज -6। ज़ीरो के नियरेस्ट कौन सा है, तो -6, एंड दैट्स वाई द आंसर इज -6। इवन नेक्स्ट वन आप देखो 7.5, 3। तो 3 के मल्टीपल्स 3, 6 एंड 9। तो ये 7.5 जो है ये कौन किसके बीच में है, दैट इज 6 एंड 9 के बीच में, बट ज़ीरो के नज़दीक कौन है, तो 6 है। दैट्स वाई द आंसर इज 6। सो आई होप ये फ्लोअर जो है ये फंक्शन आपको समझा रहेगा। नेक्स्ट वन फ्लोर, जैसे फ्लोर देखा, अब दूसरा है सीलिंग। तो सीलिंग मतलब आपको भी मालूम है ना, घर पे हम बोलते फ्लोर, फ्लोर मतलब नीचे, तो ज़ीरो की तरफ जाना है, सीलिंग मतलब ऊपर जाना है। सो अब यहाँ पे राउंड अप होगा लेकिन अवे फ्रॉम ज़ीरो, तो ज़ीरो से ऊपर आगे जाएंगे आप लोग। सो दैट्स द रीज़न, एज यू कैन सी ये पूरा अपोजिट है, फ्लोर एंड सीलिंग ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के एग्जैक्ट। सो नाउ यू कैन सी सेम एग्जाम्पल 7.5, 2। तो 2 के मल्टीपल से 4, 6, 8, एंड वी नो 7.5 लाइज बिटवीन 6 एंड 8। बट यहाँ पे अभी ज़ीरो से आगे कौन जा रहा है, दैट इज़ अवे कौन है सबसे ज़्यादा, तो कौन है, तो 8 है। दैट्स वाई इसका सीलिंग का आंसर आएगा 8। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोर एंड सीलिंग, कीप इन माइंड। ओके, ये क्या करता है, ये जो दूर है ज़ीरो से उसको वो लेता है। सेम गोज फॉर थर्ड ऑप्शन, थर्ड देखो 7.5, 3। तो यहाँ पे देखो 3 का मल्टीपल 6 एंड 9। तो ये 7.5 जो है इट लाइज बिटवीन 6 एंड 9, बट ज़ीरो से ज़्यादा लंबा कौन है, तो 9 है। दैट्स द रीज़न इसका आंसर आएगा 9। सो आई होप ये फ्लोर एंड सीलिंग जो है ये आपको समझा रहेगा। यस, जस्ट गिव मी द कंफर्मेशन क्विकली। चलो ठीक है, now we will move to the next part, that is some of the functions. Yes, next one is sum functions we will see. sum तो अभी भी हमने देखा, जस्ट थोड़े टाइम पहले हमने देखा था। yes, sum function, so auto sum भी बोल सकते हैं इसको। so basically it adds all the numbers in the range of the cell, so whatever cell we have used, तो उस सेल के अंदर जो भी नंबर्स रहेंगे
उन नंबर्स को वहाँ पे एडिशन करके आपको आउटपुट मिल जाएगा. सो जस्ट दे हैव गिवन वन टेबल ए एंड बी यहाँ पे दिया है, एंड समथिंग दे हैव रिटर्न. सो A1 में सेल्स लिखा है, A2 में, A3 एंड A4 में यहाँ पे कुछ नंबर्स है. ठीक है. सो जस्ट एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ किया है, सम A2 कोलन A4, मतलब A2 से A4 तक. सो A2 से A4 1000 प्लस 5000 प्लस 9000. सो इसका एडिशन होगा एंड यू विल गेट दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज़ 15000. सो सम तो आई गेस आपको मालूम ही रहेगा कि हाउ टू यूज़ दिस पर्टिकुलर सम फंक्शन. तो वॉट एवर सेल्स और रेंज ऑफ सेल्स यू वांट टू प्रोवाइड, सो दैट पर्टिकुलर पार्ट यू कैन प्रोवाइड इजीली एंड फाइंड आउट द सम. नेक्स्ट वन उसी का एक्सटेंशन है, दैट इज सम इफ. So it will help you to add all the numbers in a range of cell for which given condition is true. तो sum if मतलब यहाँ पे क्या होता है, हम एक रेंज भी देते हैं एंड कुछ कंडीशन भी देते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो do the calculation. So just we will check out one example they have given. Yes, now you can see one worksheet they have provided, जिसमें कुछ 5 columns है, that is A B C D E, ग्रेड, बेसिक, HRA, PF एंड नेट, ऐसे कुछ उन्होंने सैलरी का एक ये बनाया है. एंड नाउ व्हाट दे हैव डन, तो सम इफ का सिंटैक्स देखो ऊपर दिया है. सम इफ, तो पहले हम लोग रेंज देते हैं, देन हम लोग कंडीशन देते हैं. ठीक है. एंड देन सम का रेंज प्रोवाइड करते हैं. सो नाउ just check out the formula for this particular part. So to find out the total of net where basic is about 3500, तो जिसका जिसका बेसिक 3500 से ऊपर है उसी का हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, नेट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. सो जस्ट वी नीड टू टोटल नेट हमको फाइंड आउट करना है. सो द फॉर्मूला एज यू कैन सी हियर. सो पहले तो हम लोग रेंज देंगे, तो हमें किसका चेक करना है, बेसिक का. सो बेसिक का रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एज यू कैन सी कॉलम इज बी. सो B2 से B3 B4 B5. सो B2 कोलन B5. सो ये हो गया आपका रेंज. पहले आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट. ओके, ये देखो. सो सम इफ B2 कोलन B5. अब आगे आपको देना है कंडीशन. कंडीशन क्या है, तो जिसका भी काउंट 3500 से ऊपर रहेगा तो उसी को हमें सिलेक्ट करना है. सो एज यू कैन सी हियर, B2 एंड B5 में, B2 टू B5 दो ऐसे रोज है जहाँ पे एक का वैल्यू है 3000, एक का वैल्यू है कितना, 1000. तो ये दोनों हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने कंडीशन डाल दी है क्या, कि उनका बेसिक कितना होना चाहिए, 3500 से अबव. तो ओनली 2 रोज आर देयर, दिस वन, ये 4000 एंड 5000 वाले, एंड उसका जो नेट है, सो ये लास्ट वाला कॉलम ई, उसका जो नेट है उसी का आपको क्या करना है, एडिशन करना है. एंड फॉर दैट रीज़न आपको जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट किसका आएगा, तो एडिशन ऑफ दीज 2 नंबर्स. सो नाउ यू कैन डू द एडिशन, चेक कर सकते हो आप, दैट इज 9630. अगर आपको सिर्फ बेसिक कैलकुलेट करना है तो जस्ट आप इतना ही प्रोवाइड कर सकते हो, दैट इज़ B2 टू B5 रेंज, एंड जिसका बेसिक इज़ 3500 से ऊपर. तो देखो 9000, तो यहाँ पे सिर्फ इसका एडिशन होगा. ऊपर हमने नेट का भी किया था इसलिए वहाँ पे ये कैलकुलेशन आया था. अगर आप सिर्फ बेसिक कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर पार्ट. नेक्स्ट वन देखो, और एक एग्जांपल देख लेते हैं. टू मेक टोटल ऑफ HRA वेयर ग्रेड इज़ A. तो जहाँ पे ग्रेड इज़ A, पहले हमें ये कंडीशन पुटअप करना है. सो फॉर दैट रीज़न वी नीड दिस कॉलम. सो कहाँ से कहाँ तक, सो A2 से लेके A5 तक पहला रेंज देंगे हम लोग, A2 टू A5. देन कंडीशन क्या है, कंडीशन इज ग्रेड शुड बी A. तो जिसका ग्रेड A है उसका HRA आपको कैलकुलेट करना है. सो यहाँ पे 2 ही है रोज, ये A वाला एंड ये एक है A. इन दोनों का HRA, सो दिस वन 150 एंड द लास्ट वन 450, इन दोनों का एडिशन होगा, दैट इज अबाउट 600. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस सम इफ वाला फंक्शन. आई होप ये तीनों एग्जांपल्स मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए. आई होप आपको समझे रहेंगे. यस, क्विकली गिव मी द कंफर्मेशन.
ओके ओके चलो। सो नेक्स्ट वन इज़ ये यहाँ पे आपका मैथ्स का फंक्शन। अभी बहुत सारे फार्मूलाज अवेलेबल है मैथ्स के अंदर, बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल है, बट जस्ट दे हैव गिवन 7 to 8 फंक्शंस। सो सिर्फ उतना ही आप प्रिपेयर करोगे, और भी ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सो कीप इन माइंड दैट इज़ एब्सोल्यूट, स्क्वायर रूट, देन मॉड, इंट। राउंड के दो तीन टाइप्स है, दैट इज राउंड, सिंपल राउंड, राउंड डाउन, राउंड अप, देन फ्लोर एंड सीलिंग, ये दोनों, एंड देन लास्ट वन सम एंड सम इफ। तो ये जितने भी फंक्शन है मैथ्स के, उनको आप प्रिपेयर करो अलोंग विद वन वन एग्जाम्पल। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट one, that is about the statistical function. Now in statistical function, yes, basically these particular functions are used to do the statistic. तो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस अगर आपको करने हैं तो नॉर्मली वी यूज़ दिस पर्टिकुलर फंक्शंस, एंड बहुत सिंपल सिंपल फंक्शंस है। तो नाउ यू कैन सी फर्स्ट वन, दैट इज मैक्स। तो आपको समझ में आ जाएगा मैक्स फंक्शन किसके लिए यूज़ करोगे, टू फाइंड द हाईएस्ट नंबर बिटवीन द गिवन रेंज। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रहा है, यहाँ पे 1000, 5000 एंड 9000, ये तीनों नंबर्स है। तो ऑब्वियसली तीनों में हाईएस्ट कौन सा है, दैट इज़ 9000। सो मैक्स यूज़ करोगे तो वो क्या फाइंड आउट करके देगा आपको, जो भी आपने सेल रेंज दिया है एंड उस सेल एड्रेस पे जो भी काउंट इज देयर, तो उसमें से हाईएस्ट नंबर जो है वो आपको एज अ आउटपुट वहाँ पे आएगा। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन अंडर स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, दैट इज मैक्स। मैक्स के ही अपोजिट आता है मीन। आई डोंट थिंक इसको आपको एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत है। इट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन द गिवन रेंज ऑफ सेल। देन नेक्स्ट आता है दैट इज अबाउट द एवरेज। तो एवरेज कैलकुलेट करना है। सो एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज वट एवर टोटल नंबर आर देयर, तो उनका एडिशन एंड डिवाइडेड बाय टोटल काउंट। सो नाउ यू कैन सी हियर, सो यहाँ पे 1000, देन 5000 एंड 9000 तीन नंबर्स है, तो इनका एडिशन कितना हुआ, तो 15000, एंड उनको डिवाइड करना है काउंट से। तो काउंट कितना है इनका, तीन। सो तीन से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द आंसर, दैट इज अबाउट द 5000। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज़ द एवरेज। एंड इवन मैंने आपको आज ही प्रैक्टिकल एक डेमोन्स्ट्रेशन में एवरेज यूज़ करके दिखाया मैंने। नेक्स्ट वन, एवरेज इफ। सो यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे हमने सम इफ देखा था ना, वैसे ही रहेगा, जस्ट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द कंडीशन एंड द रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल। सो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं एवरेज इफ का। जस्ट चेक आउट द सिंटैक्स। एवरेज इफ यूज़ करना है आपको, तो उसमें पहले आपको रेंज देना है, देन कंडीशन पुटअप करना है, एंड इफ रिक्वायर्ड देन एवरेज रेंज भी आप दे सकते हो। सो नाउ यू कैन सी, जस्ट सिंपल वाला देखेंगे, जस्ट टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ बेसिक, ये वाला देख रहे हैं हम लोग, वेयर बेसिक इज अबाउ 3500। सो वी नो दैट हमें किसका कैलकुलेशन करना है, ये बेसिक का। कौन सा कॉलम है, डी। सो D2 से लेके D5 ये रहेगा आपका सेल रेंज। सो यू कैन सी हियर D2 टू D5, एंड कंडीशन क्या है, तो उनमें 3500 से अबव वाला ही आपको यूज़ करना है। तो 3500 से अबव वाला कौन सा है, ये दो। तो दोनों का एडिशन कितना होता है, 9000, एंड काउंट इज 2। तो दो से हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, एंड हेंस द आंसर इज 4500। दिस इज हाउ वी कैन यूज एवरेज इफ। अब ये सब सिर्फ हमें सीखने के लिए, लर्न करने के लिए है, एंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू लर्न दिस। बेसिकली इतने ज़्यादा फंक्शंस आप लोग यूज़ नहीं करते, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट, you use those particular functions which are required for your calculation। जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो उसमें अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो ही वी गो फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शंस, नहीं तो इतने सारे नंबर ऑफ फंक्शंस आर अवेलेबल इन एक्सेल, सबका हम लोग हर बार यूज करते नहीं बैठते। इट विल बी यूज ओनली एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, सो ये एवरेज इफ ये हो गया। देन नेक्स्ट वन इज काउंट। तो ये काउंट का काम क्या है, तो काउंट जितना भी सेल में नंबर्स है उनको काउंट करने के लिए ये यूज़ होता है। सो नाउ यू कैन सी हाउ मेनी नंबर्स आर देयर टोटल, हियर ओनली 3 नंबर्स आर देयर। सो 3 नंबर्स को काउंट करने के लिए वी कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, काउंट। तो जो भी आप सेल रेंज दोगे उसमें कितने नंबर्स है वो उसको काउंट करेगा। ओके,
then if there is a text entry in the range or as an argument it will not be given an error. ओके अगर आप यहाँ पे कोई अलग भी चीज़ डालते हो, टेक्स्ट डालते हो या डेट डालते हो, तो वो भी उसको क्या करेगा, काउंट करेगा. ओके, जस्ट कीप इन माइंड. नेक्स्ट वन, काउंट ए, दैट इज काउंट्स द नंबर ऑफ सेल दैट आर नॉट एम्प्टी. तो जो एम्प्टी नहीं है उसको सिर्फ काउंट करने के लिए आप काउंट ए यूज़ करोगे. एंड इफ देयर इज अ टेक्स्ट एंट्री इन द रेंज और एज एन आर्ग्यूमेंट देन इट विल नॉट गिव एन एरर. तो वो एरर नहीं देगा. ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है. सॉरी, काउंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है. काउंट के लिए इट विल गिव एरर और वो निगलेक्ट कर देगा. ठीक है, कहाँ पे है, जस्ट वी विल चेक. A1 टू A4, 1 2 3 4. सो यस, उसने सिर्फ सेल्स ये जो है उसको वो एज अ आर्ग्यूमेंट उसने लिया नहीं है. एरर नहीं देगा बट जस्ट काउंटिंग करते वक्त 3 ही काउंट किया है. A2 टू A4 अगेन 3, देन A1 टू A5 4. दैट इज़ ये जो टेक्स्ट वैल्यू है इसको वो यूज़ नहीं कर रहा है. ओके, फॉर काउंटिंग द नंबर्स, क्योंकि सिर्फ नंबर्स काउंट करने के लिए है. ओके, सो काउंट एंड काउंट ए ये हो गया. देन नेक्स्ट वन काउंट ब्लैंक. सो डेफिनेटली इट विल काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट आर एम्प्टी. तो जो एम्प्टी है उनको वो काउंट करेगा. सो नाउ यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो A1 से लेके A7 तक एक ही सेल एम्प्टी है, दैट इज़ A6. सो दैट्स वाई दे हैव गिवन 1. देन A1 से A5 सब वैल्यूज़ डाले हैं आपने वहाँ पे कुछ ना कुछ. सो फॉर दैट रीज़न 0 सेल्स आर एम्प्टी. इवन अगर आप B का देखोगे, देखो B1 टू B7 ऑल आर एम्प्टी. दैट्स द रीज़न यहाँ पे देखो 7 आ चुका है. ओके, एंड अगर आप पूरा का पूरा डालोगे A1 से लेके यहाँ से लेके B7 तक, ये पूरा टेबल में अगर आप देखोगे तो टोटल ये 7 रोज ऑफ B आर एम्प्टी एंड A का एक, तो 7 + 8 टोटल 8. सो दैट्स द रीज़न यहाँ पे ये 8 आ चुका है. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ काउंट. इवन काउंट इफ़, तो यहाँ पे कंडीशंस डालोगे आप. सो दिस फंक्शन विल काउंट नंबर ऑफ सेल्स विच विल सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन. यस, सर नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर आ का गया लिंक दूसरा डाल. लिंक ना. yes yes, okay, so we will stop here. Okay, just let me check, let me take the attendance. ओके, आज का डेट क्या है, 26. ओके, ये नंबर्स आपके चेंज हुआ, रोल कॉल चेंज हुआ क्या आपका? यस सर. ओके, तो सबने सबने चेंज किया है क्या? रोल कॉल नहीं किया है ना? आई कैन सी सबने तो रोल कॉल चेंज किया हुआ मुझे नहीं दिख रहा है. अभी ये 7047 711 कौन है ये, कैसे? ठीक है, चलो इसका अभी जब ये आएगा शीट आएगा तभी मैं अटेंडेंस लूँगा, अदरवाइज़ गूगल मीट से मैं ये कर लूँगा. ओके, सो थैंक यू गाइज, यू कैन लीव नाउ.